मार्च इस्तांबुल कौंसलेट में प्रोग्राम का इनकार किया गया। यहाँ Security Council, the international. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ टूरिस्ट एसोसिएशन का, उनके जरिए हम आप लोगों के साथ हम लोग अपने कॉन्सुलेट के ऊपर आए, कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी एम्बेसी कि साहब ये हो नहीं सकता कि कोई इवेंट हो पाकिस्तान के हवाले से और आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वेलकम करता हूँ। यौम पाकिस्तान के मौका पर इस्तांबुल कौंसलेट में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे यौम पाकिस्तान किस तरह मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बात भी करेंगे, उनका इजहार ख्याल भी सुनेंगे, दिल के जज्बात देखते हैं क्या कहते हैं। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। नज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुन to the entire Pakistani nation on the occasion of Pakistan Day. On this very day in 1940, the Muslims of the subcontinent adopted the Pakistan Resolution and presented the idea of establishing a separate homeland where they could live their lives freely in accordance with Islamic principles. Today, we pay tribute to our elders who struggled and sacrificed. Pakistan Day reminds us that unity and solidarity are the most important elements in transforming national resolve into reality. At the time of Pakistan's creation in 1947, we faced numerous challenges. History bears witness that through mutual cooperation, hard work, and capability, we overcame those difficulties and achieved remarkable success in every field. Shining examples of sacrifice and mutual support during natural disasters. During courage and taught such a lesson that it will remember the people of IIOJK to live according to their will and to grant them the right of self-determination in accordance with the resolutions of the United Nations Security Council. The international community must also step forward to end the atrocities being committed against our Palestinian brothers who deserve to live a dignified law, strengthen democratic institutions, reduce inequality, empower women, promote political and economic stability, and eliminate the scourge of terrorism and extremism. We have achieved our objectives in the past, and I firmly believe that we possess the full capacity to overcome the challenges currently faced by Pakistan. Unity, faith, and discipline are the guiding principles through which we can make Pakistan even stronger. Sacrificed for creation and stability of Pakistan and devoted their lives to the security, stability, and prosperity of the motherland. May Allah Almighty be our protector and supporter. Ameen. Pakistan Zindabad. Ladies and gentlemen, this was the message from the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Mia Muhammad Shehbaz Sharif. It is a significant milestone in the history of South Asia. 86 years ago, on this historic day, the Muslim leadership of the subcontinent
united with unwavering resolve to lay the foundation of a separate homeland. Drawing inspiration from the vision of Allama Iqbal, Muslim leaders presented their constitutional and political rights and lived with dignity, freedom, and honor. On 23rd March 1940, the historic Lahore Resolution instilled such determination among Muslims that within a short span of 7 years, on the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, undoubtedly with the blessing of freedom, Pakistan stands as a testament to numerous challenges. We have, by the grace of Almighty Allah, steered Pakistan's economy towards sustainable growth. A consistent decline in inflation, increase in investors' confidence, and positive economic indicators are the evidence that we are moving in the right direction. This progress is the result of bold reforms, prudent policies, and the people's confidence in their abilities and in their bright future of our beloved country. Our armed forces and law enforcement agencies, with their high professionalism and patriotic spirit, are defending Pakistan's freedom and sovereignty. Last year, during Operation Bunyad al-Marsus, Pakistan's armed forces delivered a strong and decisive response to the enemy, writing a golden chapter of military history. By thwarting hostile designs, they proved that Pakistan's defense is impregnable and our resolve unshakable. This year, on the night of 26th February, the unprovoked aggression by a Taliban insurgent group on our border. ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज एक वर्किंग डे होने के बावजूद अपना टाइम निकाला और पाकिस्तान डे की इस तकरीब में शामिल हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलाकाई हालात की वजह से इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने सादगी के साथ पाकिस्तान डे की तकरीबात मनाने का ऐलान भी हमने पोस्टपोन कर दी है। तो हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो इलाकाई सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तान को चैलेंज से निकालें। और आप एक दफ़ा आपका यहाँ पे आना आप इस बात का एक मुज़ाहरा है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान आपके दिलों में बसता है। अल्लाह ताला आपको और इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। Legislature General of Pakistan, I express my gratitude to all the visiting guests who have come today and joined us in this celebrations. अस्सलाम वालेकुम जी। योम पाकिस्तान के प्रोग्राम के मौका पर आज हम पाकिस्तान कौंसल इस्तांबुल में हैं। पाकिस्तान के प्रोग्राम के मौका पर यहाँ पे इकट्ठे हुए, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी हुई है और मौका मिला है कि सर से हम पूछते हैं कि आज के मौका पर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में और पाकिस्तान के बारे में सर सबसे पहले आपको सर मुबारक है योम पाकिस्तान के प्रोग्राम पे, और कम्युनिटी के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जाफी साहब, तमाम कम्युनिटी को और तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से इस दिन की मुबारकबाद। आप लोगों ने आज वक्त निकाला है अपने मसरूफियात में से और आप कॉन्सुलेट आए हैं और इस तकरीब में हमारे साथ शामिल हुए हैं, जो कि ये बात जाहिर करता है कि आप चाहे वतन से दूर है, वतन आपसे दूर नहीं है और आपके दिलों में है। हमारी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखा रहे हैं दुनिया को और दरकश को। यहाँ पे हमारी बहुत पुराना ताल्लुक है, एक भाइयों का ताल्लुक है और आप उसके अलमबरदार हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है और यहाँ पर उनका रुझान कम देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, तो उनके लिए कोई प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे होने चाहिए कि जो 14 अगस्त है या पाकिस्तान के प्रोग्राम के अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि कोई कम्युनिटी इकट्ठी होके आप तक गुजारिशात को पेश कर सकें, कोई अपने मसले मसाइल को पेश कर सके। ला सर आप इनके बारे में आप क्या कहते हैं? साहब, हम अपनी कम्युनिटी को हर वक्त अवेलेबल हैं और अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे हादसा होते हैं, इधर लोगों की अमवात हुई हैं। पिछले हफ्ते एक बच्चे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, हमने उनके सब मदद की यहाँ से बॉडी की ट्रांसपोर्ट में, और हमारे नंबर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, मेरा नंबर भी मौजूद है डायरेक्ट, और कम्युनिटी में किसी को भी कोई मसला होता है तो हमें पहुंच सकता है। बाकी हमने तो कुछ एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, स्टूडेंट्स की एसोसिएशंस हैं, उनके ज़रिए हम आप लोगों के साथ इन टच रहते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये थे अपना कौंसल जनरल साहब, और उनका फरमाना था, कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल मायूस ना हो, यहाँ पे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बल्कि व्हाट्सअप नंबर तक भी है। आपके साथ कोई भी मसला मसाइल यहाँ पे पेश आता है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
योम पाकिस्तान के मौका पर आज पाकिस्तान कॉन्सुलेट इस्तांबुल में हम खड़े हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में योम पाकिस्तान का प्रोग्राम इनकाद हुआ, शिरकत की। इसी तरह हमारे साथ इस टाइम खड़े हैं स्टूडेंट जो कि इस्तांबुल में स्टडी के घर से आए हुए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान से आके इस्तांबुल के अंदर योम पाकिस्तान मनाते हुए कैसा लगा, क्या फील करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। और दूसरा ये कि हम लोग अपने कौंसुलेट के ऊपर आए। कोई भी कौंसुलेट, कोई भी एम्बेसी किसी दायरे गैर के अंदर आपके मुल्क का अपना टुकड़ा होता है। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे लग रहा है, हम तमाम जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, कि हम बिल्कुल अपने घर के अंदर आज मौजूद हैं। और ये वो एक ऐसा घर है हमारा, एक ऐसी फसील है जिसके अंदर हम महफूज हैं, जिसके अंदर हमारे मुल्क के मुहाफिज महफूज हैं, और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बाकी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि तमाम लोगों के लिए मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी जाएँ, इनकी मज़ीद बॉन्डिंग के लिए, इनके आपस में कनेक्शन के लिए, ताकि पता लगे कि पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मुत्तहिद हैं और यकजा हैं। तो इस दिन के ऊपर मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान, हमारा माल, हमारा सब कुछ हाजिर है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर या बाहर जब भी ज़रूरत पड़ी हम लोग पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहते हैं? इस बारे में हमारा ये ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान कौंसल जनरल में आज के दिन की मुनासबत से जो तकरीबात मुनक़िद की गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरीके की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी, क्योंकि दियार गैर में इस तरीके की तकरीबात का होना ऐसा फील कराता है जैसे आप बिल्कुल अपने घर में हैं। और जिस तरीके से हम पाकिस्तान में मनाते थे 23 मार्च, इस तरीके से यहाँ पे भी हमें मनाने का मौका मिला है और हमें अपने घर वाली फील आई है यहाँ पे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। बेसिकली कॉन्सुलेट का पर्पस क्या होता है, किसी भी मुल्क में अपने मुल्क के शहरियों को इकट्ठा रखना। अब हम यहाँ पे आए हैं, हम तुर्की में आने के बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स मिलते हैं और डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें अपना मुल्क का और अपने घर का वो माहौल नहीं मिलता। एक कॉन्सुलेट में आने का पर्पस होता है हम अपने घर में मौजूद आ जाते हैं, ठीक है, हमें उसमें सुकून मिलता है। और कॉन्सुलेट को अगर चाहिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करे, ताकि स्टूडेंट्स जितने हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी कुछ इश्यूज भी हैं वो भी रिजॉल्व हो जाता है। इस बहाने स्टूडेंट्स का जो होता है उसको पीस भी मिलता है कि यार चलो मैं दूसरी कंट्री में तो आ गई लेकिन मेरा घर यहाँ पे मौजूद है। हर योम पाकिस्तान के प्रोग्राम पे तो एक नारा जरूर बनता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो कि बाकी लोग भी शामिल थे, स्टूडेंट भी थे, बाकी भी थे। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में एक बड़ी खूबसूरत फैमिली हमारे साथ है। इनसे पूछते हैं कि योम पाकिस्तान के मौका पर आप क्या कहते हैं? जी सर। जी बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। ये हो नहीं सकता कि कोई इवेंट हो पाकिस्तान के हवाले से और आप लोग ना आए, और बहुत अच्छी बात है आप लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने दियार गैर में अपने पाकिस्तानियत को। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें ये चीज़, इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि जब आप परदेश में होते हैं, दियार गैर में होते हैं, तो इस किस्म के इवेंट में जाना भी अपने वतन से जो है वतनी का इजहार करने के मुतरादिफ है, और हमें इसका ज़रूर इदराक करना चाहिए। और आप लोगों को वाकई क्रेडिट जाता है, आप लोग हर जगह पे पहुंच जाते हैं, और ये सिलसिला जारी रखिएगा, इससे पीछे नहीं हटना आपने। तो आपके तवसत से आपके व्यूअर्स को और सभी देखने वालों को हम यौम पाकिस्तान की 23 मार्च की मुबारकबाद देते हैं, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया। जी भाभी आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ऐसे इवेंट में लाज़मी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जेनज़ीज़ को हमारे इन इवेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं मालूमात। तो हमें ऐसे जो इवेंट्स हैं उसमें लाज़मी आना चाहिए, ताकि जेनज़ीज़ को, जो नई नस्ल है, उनको योम पाकिस्तान का और इन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जी जेंजी आप क्या कहते हैं? मैं जेंसी के तौर पे कहना चाहूँगा सबसे पहले तो योम पाकिस्तान मुबारक, और कहना चाहूँगा कि इससे हमें पता चला है कि योम पाकिस्तान क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था। और एक बार फिर योम पाकिस्तान मुबारक। ये देखें ना, हम कैसे तैयार होके भरपूर तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं हर इवेंट को, और ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दियारे गैर में रह रहे हैं और अपने वतन में नहीं जाते हैं, तो उससे बाहर दूर रह के ये चीज़ें करना ज़रूरी है। आज की नस्ल को ये बताना ज़रूरी है। मैंने आज स्कूल के लिए छुट्टी की है ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर सेलिब्रेट करूँ। पहले आप सब लोगों को यौम पाकिस्तान मुबारक।
जी यौम पाकिस्तान के मौका पर इस्तांबुल जनरल कौंसिल में हम इकट्ठे हुए। यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जैसे कि आपने देखा, जिस तरह यौम पाकिस्तान पाकिस्तान में मनाया जाता है, इसी तरह इस्तांबुल के अंदर भी यौम पाकिस्तान मनाया गया। इन प्रोग्राम का इनकाद किया गया और आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी आई, जिनमें स्टूडेंट भी शामिल थे। इंटरव्यू भी किया, उनके जज्बात का इजहार उन्होंने अपना अपना किया कि हम परदेश में रहते हुए पाकिस्तान को ना भूले हैं, ना पाकिस्तान को भूलेंगे। यौम पाकिस्तान के मौका पर मेरी तरफ से आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारक हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।